اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے کلمہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ عربی زبان میں کلمہ کو 3 قسم میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ ہم نے شروع کیا تھا اسم سے اور بتایا تھا کہ اسم کو استعمال کرنے کے لیے 4 باتیں جاننا ضروری ہیں۔ 4 باتیں جاننا ضروری ہیں۔ تو ان 4 باتوں میں سے ہم نے کیا کیا بات بتائی تھی؟ سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا، پہلا بات یہ ہے کہ اسم کی عدد کو جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسم کی جنس کو جاننا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اسم کی عدد کو جاننا ضروری ہے۔ تیسری بات، اسم کی وسعت کو جاننا ضروری ہے۔ اور چوتھی بات، اسم کا اعراب ہے۔ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے پچھلے درسوں میں کہ جنس کیا ہے، جنس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اور عربی زبان میں کیسے ہم کسی اسم کو جنس کے اعتبار سے پہچانیں گے۔ اس کے بعد ہم نے عدد کا موضوع بھی پڑھ لیا۔ عدد واحد ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ جمع کی 2 قسمیں، جمع سالم اور ایک جمع مکسر۔ تو ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں اعراب کے اوپر۔ تو آگے چل کر اعراب کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اسم کو استعمال کرنا ہے، اور اسم کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ان 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ کلمہ کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر بامعنی لفظ عربی زبان میں کلمہ کہلاتا ہے، اور اسم بھی ایک کلمہ ہے، اور اسم کو استعمال کرنا ہے ہمیں، اس لیے ہمیں 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جنس اور عدد کے بعد آج انشاءاللہ ہم لوگ اعراب شروع کریں گے۔ اعراب، تو اعراب کیا ہے؟ اعراب کے بارے میں ایک غلط فہمی لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ زبر، زیر یا پھر پیش جو ہے یہ اعراب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زبر، زیر، پیش کیا ہے؟ حرکات، یہ حرکات ہے، یہ اعراب نہیں ہے۔ اب میں اعراب کی ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ مثلا ہم ایک اسم لے لیتے ہیں، محمد۔ تو اس کے آخر میں ہم نے کہا تھا کہ ابھی ہم لوگ نہیں بتا رہے کون سی حرکت دیں گے، لیکن کیونکہ اب ہم اعراب کا موضوع پڑھ رہے ہیں، اس ٹاپک پر آ گئے ہیں، تو اب ہم بتائیں گے کہ اسماء کے آخر میں کیا حرکت ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات جو جاننے کی ضروری ہے، جاننا چاہیے ہمیں، یہ ہے کہ اعراب کے اعتبار سے اسم یا حالت رفع میں ہوتا ہے، یا حالت نصب میں ہوتا ہے، یا حالت جر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور محمد جو ہے یہ کون سا اسم ہے؟ ہم نے 2 چیز پڑھ لیا ہے، ایک اسم کا عدد پڑھ لیا ہے، دوسرا اسم کا جنس۔ تو عدد کے اعتبار سے محمد جو ہے وہ واحد ہے، اور جنس کے اعتبار سے محمد کیا ہے؟ مذکر۔ تو یہ ایک واحد مذکر اسم ہے، تو اس کا اعراب ہمیشہ ایسا ہوگا۔ حالت رفع میں وہ ہوگا محمدن، دن کی آواز آئے گی۔ حالت نصب میں محمد، اب یہ 2 زبر یہاں پہ لگے گا۔ جب بھی 2 زبر آخر میں لگتا ہے کسی اسم کے، اور اس کے آخر میں دال ہو یا کوئی بھی اور حرف ہو، تو اس کو الف یہاں پہ ایسے ایکسٹرا لکھا جاتا ہے، محمدن۔ اس کے بعد حالت جر میں محمدن، تو آواز سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، دن، 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 یہ آواز آئے گی۔
जब कोई वाहिद मुज़क्कर इस्म एराब के लिहाज से तीन हालतों में पेश किया जाएगा, यानी पहली हालत हालत रफ़ा, दूसरी हालत हालत नसब, तीसरी हालत हालत जर। तो ये है इस्म का अपना शक्ल बदलना। वो भी अगर गौर करें तो आखिरी इस्म की आखिरी जो हिस्सा है उसमें शक्ल बदल बदल रही है। शुरू के हिस्से में मीम है, मीम में कोई शक्ल नहीं बदल रही। तो इस्म के आखिर में जो हरकत नहीं बल्कि शक्ल बदलती है या हालत बदलती है, उसे कहते हैं इसमें एराब का बदलाव होना। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन चाहें या तारीफ करना चाहें कि एराब क्या है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस्म के आखिर के हिस्से में, इस्म के आखिर के हिस्से में माना की तब्दीली के बगैर, माना की तब्दीली के बगैर शक्ल या हालत की तब्दीली को एराब कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन या तारीफ हो गई। क्योंकि माना मोहम्मद का, मोहम्मद इसम है तो मोहम्मद ही रहेगा, चाहे वो मोहम्मदुन हो, चाहे वो मोहम्मदन हो, चाहे वो मोहम्मदिन हो। लेकिन ऐसी हालतें क्यों बदलता है इसमें, इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। कुछ वजूहात होते हैं जिनकी वजह से, कुछ हर्फ होते हैं जिनकी वजह से अगर वो इसम उनके बाद आए तो हालत बदल लेता है, कुछ फेल होते हैं जिनकी वजह से इसम उसके बाद आए तो हालत बदल लेता है। लेकिन अभी हमें फिलहाल इतना ही जानना है कि कोई वाहिद मुज़क्कर इस्म अगर हमें दे दिया जाए तो उसके एराब को हम हालत रफ़ा में कैसे लिखेंगे, हालत नसब में कैसे लिखेंगे और हालत जर में कैसे लिखेंगे। हमेशा वाहिद मुज़क्कर इस्म का एराब मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन होगा। और भी कोई इस्म इसके बगैर इंसान ले ले तो वही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बेहतर आसानी से फहम के लिए हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चल सकता है कि हमने कहाँ तक पढ़ा है। सबसे पहले हमने अदद को पढ़ा है, वाहिद के अदद को। और वाहिद में भी हमने दो तरीके के वाहिद पढ़े हैं जिन्स के एतबार से अगर देखा जाए तो। एक मुज़क्कर का वाहिद पढ़ा है और दूसरा मुअन्नस। वाहिद मुअन्नस भी हो सकता है, वाहिद मुज़क्कर भी हो सकता है। इसकी मिसाल लिख लें यहीं पे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। मसलन किताब जो है, एक किताब हुआ, ये किताब, इसके आखिर में हमने अभी कोई हरकत नहीं डाली। ठीक है, ये साकीन है किताब। अभी हम बताएंगे एराब के एतबार से इस्म की हालतों का बदलाव होना या बदलना। तो ये हालत रफ़ा होगी यहाँ पे, यहाँ पे हालत नसब लिख लेंगे हम। और यहाँ हालत जर लिख लेंगे। तो ये किताब जो है एक वाहिद मुज़क्कर इसम है, इसमें कोई किसी को शक नहीं है क्योंकि इसके आखिर में गोलता नहीं आ रही और मुअन्नस की कोई भी अलामत इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, एक वाहिद मुअन्नस इसम के बारे में सोचते हैं। वाहिद मुअन्नस इसम जो है, हम मिरवाहा ले लेते हैं। मिरवाहा, मिरवाहा एक वाहिद मुअन्नस इसम हो गया। अच्छा, हमने वाहिद का तो मिसाल ले लिया, अब मुसन्ना के बारे में क्या ख्याल है। मुसन्ना के बारे में हम यहाँ पे एक और चार्ट बनाते हैं। मुसन्ना,
عدد کے اعتبار سے عربی زبان میں دو کا عدد الگ سے کہا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے مثنیٰ ہم نے لیا، اور مثنیٰ کا بھی مذکر ہو سکتا ہے یعنی دو مذکر، اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے یعنی دو مؤنث۔ ہم نے بنانا بھی سیکھ لیا تھا کہ کیسے مثنیٰ بناتے ہیں، مذکر کا مثنیٰ میں آنی کی آواز اور مؤنث کی مثنیٰ میں بھی آنی کی آواز آئے گی۔ تو مثال کے طور پر ہم یہاں پہ ایک اسم لکھ دیتے ہیں، رجولانی، رجولانی یعنی دو مرد، اور مؤنث کے لیے ہم اسم لے لیتے ہیں بنتانی، بنتانی، بنتانی یعنی دو لڑکیاں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے واحد مثنیٰ کے بعد جمع آتا ہے، اور جمع کے دو اقسام ہیں، تو ابھی ہم جمع سالم لیتے ہیں، جمع سالم، اور جمع سالم کے بارے میں وہی بات ہوگی، پھر سے ایک مذکر ہوگا اور دوسرا مؤنث۔ مذکر کی مثال ہم مسلمون لے لیتے ہیں، بہت ہی آسان مثال ہے، مسلمون۔ جمع سالم مذکر میں اونا کی آواز آتی ہے، سب کو پتہ ہے، یہ آسان ہے، ہم نے دیکھ لیا تھا کیسے بنایا جاتا ہے۔ اور مؤنث کے لیے ہم صالحات لے لیتے ہیں، صالحات، تو اس میں آت کی آواز آتی ہے، آت کی۔ یہ ہو گیا، تو اب اس کے بعد ہم جمع سالم مذکر اور مؤنث ہو گیا، اب جمع مکسر بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ جمع مکسر بھی جمع کی ایک قسم ہے، جمع مکسر جمع کی ایک قسم ہے، اور اس میں بھی مذکر آ سکتا ہے یا مؤنث۔ تو مذکر جمع مکسر اقلام، جو قلم کی جمع ہے، اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ اسے بنانے میں حروف کی ترتیب بگڑ جا رہی ہے، اقلام۔ اور مؤنث کی مثال ہم لے لیتے ہیں نساء۔ یہ ہم نے یہاں پہ چارٹ بنا لیا، اب ان سب کا حالت رفع، نصب اور جر ہم یہاں پہ لکھیں گے، اور اسے بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ واحد مذکر اسم کے لیے جو رفع، نصب اور جر کی حالت ہوگی، اس میں دن، دن، دن کی آواز آئے گی۔ تو ہم کر لیتے ہیں، پہلے دو پیش لگائیں گے، کتابن، پھر دو زبر، کتابن۔ اب بے کے اوپر دو زبر لگانے سے الف بے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بعد کتابن، کتابن۔ اب واحد مؤنث پہ آتے مروحہ، مروحہ کے لیے بھی یہ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ وہی دن، دن، دن کی آواز آئے گی، تو ہم لکھ لیتے ہیں مروحہ تن، یعنی دو پیش پہلے، اس کے بعد مروحہ تن۔ اب دیکھیے یہاں پہ دو زبر لگا رہے ہیں لیکن الف نہیں لگا رہے، کیونکہ تائے مربوطہ پہ جو ختم ہوگی اسم، اس کے لیے ہمیں الف لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ قاعدہ ہے عربی زبان کا، تو اسے یاد کر لینا بہت اہم ہے۔ یہاں ہم الف مٹا دیں گے، الف لگانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ مروحتن، مروحتن، اور حالت جر میں مروحتن، مروحتن۔ کافی آسان تھا یہ۔ اب مثنیٰ جو حالت رفع میں جائے گا اور وہ مذکر ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، یہ سوال ہوتا ہے انسان۔ تو اس کے لیے بہت آسان سی یہ ترکیب ہے کہ حالت رفع میں جو مثنیٰ رہے گا، پہلے ہمارا جو بنا تھا مثنیٰ مذکر اسم، وہی لکھ دیا جائے گا ڈائریکٹ، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بہت اچھی بات ہے، کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، رجولانی رجولانی ہی رہے گا۔ لیکن اب حالت نصب اور جر میں حالت بدل جائے گی، ٹھیک ہے؟
तो क्या नसब में दूसरी हालत होगी और जर में भी दूसरी हालत? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नसब और जर में एक ही हालत होगी और एक ही शक्ल होगी। वो क्या शक्ल है, वो कैसे बनाते हैं, यह भी हम लोग सीख लेते हैं। र, यहाँ पे जबर है, ये पेश नहीं है, इसे मिटा लेते हैं। र, जू। अब ये लाम के ऊपर जो जबर है वो हमेशा रहेगा। ये अलिफ और नून जो है वो हम मिटा देंगे, उसकी जगह हम या और नून लिख देंगे। या, एक या लिखा, एक नून लिखा, ये एक या लिखा और ये एक नून लिखा, और या के ऊपर साकीन दे देंगे। तो हम अलिफ और जबर हटाकर, अलिफ और नून के नीचे जेर हटाकर या और नून लगा रहे हैं, और या के ऊपर एक साकीन होगा। तो ये क्या हो गया, रजू लई नी, रजुलैनी। और हालत जर में भी वही हालत होगी, नसब की हालत। तो रजुलैनी, काफी आसान है। उसके बाद हम जाते हैं मुसन्ना मुअन्नस में, जो बिनतानी है। बिनतानी के लिए हमें हालत रफा में भी उसी को वैसे ही लिख देना है, बिनतानी को बिनतानी लिख देना है। तो बहुत अच्छी बात है। तो हम इसे लिख देते हैं बिन तानी। अब इसके बाद क्या करना है, हालत नसब और जर में वही काम करना है, अलिफ और नून हटाकर या और नून लगा देना है। तो इसे हम बनाएंगे बिन ता, अलिफ हटा दिया, या लगाया एक, या लगाया और नून लगाया, या के ऊपर साकिन, नून के नीचे जेर। तो ये हो गया बिन तईनी, बिन तईनी, यानी दो लड़कियां, दो लड़कियां। और ये हालत नसब में है। इसके माना भी दो लड़कियां ही हैं, बिनतानी, लेकिन ये हालत रफा में है। और इसके माना भी दो लड़कियां ही हैं, लेकिन ये हालत नसब में है। तो इसम की आखिर में तब्दीली, शक्ल की तब्दीली बगैर माना की तब्दीली के एराब कहलाता है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि माना की कोई तब्दीली इसमें नहीं होगी। हालत जर में बहुत आसान है, जो हमने लिखा है उसी को फिर से दोहरा दें, क्योंकि नसब और जर एक ही हालत में होती है। बिन तई नी। उलमाए लुगत जब अरबी ज़बान पढ़ाते हैं तो ख़ासा बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उम्क से अगर पढ़ा जाए तो बहुत सारी डिफरेंसेस हो सकती है। लेकिन क्योंकि मैंने अपने उस्ताद से जो सीखा है, उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाया है आम फहम लोगों के समझ के लिए, इसलिए मैं ही उसी तरीके को इख्तियार करते हुए बयान भी कर रहा हूँ। और उलमाए लुगत की किताबों में अगर कोई डिफरेंट चीज़ मिले तो आप ज़्यादा चौंक ना जाना, क्योंकि मुमकिन है कि एक चीज़ को उलमाए लुगत डिटेल के साथ बयान करें और उसमें बहुत ज़्यादा अक़साम और दर्जाबंदी पेश करें। तो इससे हमारे माना को फहम करने में कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि अभी हमारा मकसद कुरान और अहादीस को समझना है। तो और कुरान की ज़बान फुसहा है, और फुसहा ज़ुबान बग़ैर कवायद के जाने इंसान याद नहीं कर सकता। तो एक आम इंसान याद नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई अरब है और अपनी ज़िंदगी में उसने ज़्यादातर हिस्सा अरबों के दरमियान गुजारा है, तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। फिर भी अरबी फुसहा ज़बान जो है, वो आज भी अरब भी जब याद करते हैं तो उनको कवायद की सीखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अमूमन जब वो मुकालिमा करते हैं तो आमिया ज़बान में करते हैं, जो लहजे की ज़बान होती है, ना कि फुसहा अरबी की ज़बान, जो इस्लाम के आने यानी दौर इस्लाम में जो राइज थी। वो अरबी की ज़बान में जो मुकालमा होता था उस ज़माने में, आज के ज़माने में मुकालमा उस ज़बान में नहीं होता। होता है, खुतबा करते हैं और न्यूज़ रीडर कुछ जब अखबार सुनाते हैं तो फुसहा अरबी में सुनाते हैं, लेकिन आम लोग जब आपस में बात करते हैं तो आमिया में बात करते हैं। इसलिए अरबी ज़बान में फुसहा अरबी को पढ़ने की बहुत ज़्यादा अहमियत है, अगर आपका मकसद कुरान व अहादीस को अच्छी तरीके से याद करना या समझना है। जमा सालिम, जमा सालिम मुज़क्कर मुस्लिमूना। अब मुस्लिमूना को हालत रफ़ा में हम मुस्लिमूना ही लिखेंगे।
मुस्लिमूना। अच्छा, अब हालत नसब और जर क्या होगी? और आपको बता दूं कि नसब और जर की हालत एक ही होगी, तो आसान है, हम बस नसब सीख लेंगे और जर को वहां पे कॉपी कर देंगे। तो क्या करना है, हमें ये करना है कि पहले तो हमें मुस्ली तक लिखना है, उसके बाद मीम में जो पेश है उसे जेर कर देना है। ठीक है, मुस्ली, मीम में जो पेश है उसे जेर कर देना है, और वो और नून हटा देना है, वो और नून हटाकर उसकी जगह या और नून लगाना है, और यहाँ पे नून के ऊपर जबर देना है। तो ये हो गया मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। और हालत जर में आपको पता है वही हालत होगी, तो हम लिख लेते हैं मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब जमा मुकस्सर में आने से पहले जमा सालिम मुअन्नस का बाकी है हमारा सालिहात। तो अब हम बताएंगे कि सबसे पहले हालत रफ़ा में क्या हरकत होती है आखिर में। तो सालिहातुन, तुन, तो ये सालिहातुन होगा। और नसब में क्या होगा? नसब में बहुत आसान है इसका भी, इसमें भी तुन तन तिन की आवाज, यानी वही, फिर दो जबर दो जेर, दो जबर दो, दो दो पेश दो जबर और दो जेर आएगा। तो सालिहातुन, सालिहा। अब यहाँ पे जानने की बात है कि यहाँ पे दो जबर नहीं होगा। तिन, जमा सालिम मोनस में कभी भी सालिहातन नहीं होता है, हमेशा दो जेर होगा हालत नसब में, सालिहातिन। और जर में तो एक ही हालत होगी जो नसब की हालत होगी। तो ये बात जानने की बात है कि हमारा कायदतन अगर हम इसे कॉपी करते हैं, इसको, ये जो जमा सालिम, जमा सालिम मोनस है, इसको देखकर अगर वाहिद मोनस को देखते हैं, मसलन वाहिद मोनस को देखा जाए, तो ये वाहिद मोनस जो है इसमें क्या है, तुन तन तिन, ये दो जबर आ रहा है, लेकिन यहाँ नसब में दो जबर नहीं आएगा। ये कायदा है, ये खास कायदा जमा सालिम मोनस का है। तो सालिहातुन, सालिहातिन और सालिहातिन होगा, सालिहातन नहीं होगा। तो अब जमा मुकस्सर में आते हैं। जमा मुकस्सर में हम अकलाम हमने लिया था मुजक्कर के लिए, तो अकलाम यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे वाहिद मुजक्कर में होता है, जैसे वाहिद मुजक्कर में हो क्या होता है, बुन बन बिन, यानी दो पेश दो जबर दो जेर, तो यहाँ भी वही होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अकलामुन, उसके बाद अकलामन, उसके बाद अकलामिन। और उसके बाद भी जमा सालिम मुकस्सर मुअन्नस के लिए भी वही होगा। तो हमने निसा का इसम लिया है जो जमा सालिम मुअन्नस है, तो निसाउन, निसाअन और निसाइन। तो ये काफी आसान हो गया क्योंकि जमा सालिम मुजक्कर मुकस्सर, यानी ये जमा सालिम मुकस्सर और वाहिद इसम जो है, इसकी एराब उन अन इन, यानी दो जबर, दो 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 पेश रफा में दो पेश की हालत, नसब में दो जबर की हालत, जर में दो जेर की हालत, इससे पहचानी जाएगी या तशखीस दी जाएगी। तो वाहिद मुजक्कर के लिए अगर किताब है तो किताबुन हालत रफा में, किताबन हालत नसब में, किताबिन हालत जर में। इसी तरह जमा मुकस्सर मुजक्कर में अगर अकलाम है तो हालत रफा में अकलामुन, उसके बाद हालत नसब में अकलामन और हालत जर में अकलामिन। इसी तरह वाहिद मुअन्नस में मिरवाहा है, अ, फिर हालत रफ़ा में वो मिरवाहतुन हो जाएगा, दो पेश लगेगा। हालत नसब में मिरवाहतन हो जाएगा, दो ज़बर। हालत जर में
मिरवाहतिन हो जाएगा, दो जेर। तो दुन दन दिन या फिर उन अन इन किसी भी आवाज से आप पहचान सकते हैं। यानी हालत रफा में दो पेश, हालत नसब में दो जबर, हालत जर में दो जेर। तो इन दोनों को हमने सिमिलर करा दिया है, इन दोनों को इस पे हमने सर्किल किया है। यानी वाहिद मुजक्कर वाहिद मोनस और जमा मुकस्सर मुजक्कर और जमा मुकस्सर मोनस, आसान से याद हो जाने के लिए। अब बात होती है मुसन्ना के बारे में। तो मुसन्ना का तरीका बहुत आसान है। मुसन्ना हालत रफा में रजुलानी है, मुजक्कर तो रजुलानी ही रहेगा। और हालत नसब और जर में क्या होगा? हालत नसब और जर में ये होगा कि अलिफ और नून को हम मिटाकर या और नून ले आएंगे। नून के नीचे जेर जेरी रहेगी, सिर्फ या के ऊपर साकिन हो जाएगा, तो रजुलानी हो जाएगा, रजुलैनी रजुलैनी। ठीक है। इसी तरह बिनतानी के लिए भी वही हम करेंगे। क्या करेंगे? अलिफ और नून हटा देंगे और या और नून ले आएंगे। नीम नून के नीचे जेर ही रहेगा लेकिन या के ऊपर साकिन हो जाएगा, तो बिनतानी हो जाएगा बिनतईनी बिनतईनी। और उसके बाद जमा सालिम मुजक्कर के लिए हमने बयान किया है कि मुस्लिमूना हालत रफ़ा में, उसके बाद क्या होगा? वो और नून को हटाकर या और नून ले आएंगे। और मीम यानी आखिरी जो हर्फ होगा, वो और नून को हटाने के बाद आखिरी जो हर्फ होगा, उसको जो हालत होगी उसे हालत उसको जेर कर देंगे। यानी पेश को अगर पेश रहा कोई भी हालत हो इसे जेर कर देंगे। तो ये मुस्लिमूना था, हमने वो और नून हटाया, मुस्लिमू बचा। उसके बाद हमने मीम के ऊपर पेश की हालत देखी, तो पेश की हालत को मिटाकर जेर कर दिया, मुस्लिमी हो गया। उसके बाद या और नून ले आए हमने, यहाँ पे या और नून हमने लाया। उसके बाद ये हो गया मुस्लिमीना। नून के ऊपर जबर ले आएंगे, यहाँ पे जबर लाना होगा, जेर नहीं होगा। जेर लाते हैं नून के नीचे, जेर लाते हैं मुसन्ना में, लेकिन जमा सालिम में नून के ऊपर जबर ले आएंगे। तो मुस्लिमूना हो गया मुस्लिमीना। इसी तरह हालत जर में एक ही हालत है, मुस्लिमीना। और एक ख़ास बात जो जमा सालिम की हमने पढ़ी मुअन्नस के लिए, कि हालत नसब में दो ज़बर नहीं आती, तो सालिहातुन फिर हालत नसब में सालिहातिन हो जाएगा, और हालत जर में तो सालिहातिन रहेगा। तो हमने यहाँ पे हालत जर में सालिहातिन लिख ही दिया। तो ये ख़ास बात थी जो जमा सालिम मुअन्नस के लिए हमें ज़हन नशीन कर लेनी होगी, कि जब भी जमा सालिम मुअन्नस यानी बहुत दो से ज़्यादा ख़वातीन का ज़िक्र हो, तो उनको हालत नसब में जब ले आएंगे तो हम दो ज़बर नहीं लगाएंगे बल्कि दो ज़ेर होगा। और जर में तो वही होता है जो नसब में होता है। तो सालिहातुन सालिहातिन सालिहातिन, ये याद करने की ज़रूरत है। और बाकी सब काफ़ी आसान है इंशाल्लाह। और ये बात जानने की बहुत अहम ज़रूरत है कि जो भी आराब सीख ले उसके लिए कुरान मजीद का अक्सर हिस्सा और अरबी ज़ुबान का अक्सर हिस्सा बाइस फ़हम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी अल्फाज या अस्मा जो अरबी ज़ुबान में आते हैं वो हालतें अपनी बदलते रहते हैं। जैसे हमने बयान किया, माना की तब्दीली के बगैर इस्म अपनी हालत बदल लेता है। तो एक आम इंसान को समझ में नहीं आता ये कभी किताबुन क्यों आ रहा है, फिर किताबन क्यों आ रहा है, और किताबिन क्यों आ रहा है। इसके खास असरात भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन किताबुन भी किताबी है, किताबन भी किताबी है, और किताबिन भी किताबी है। इसके लग़वी माने में कोई तब्दीली नहीं होती। तो ये था एराब का मौजू, जिसे जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है, और इसको प्रैक्टिस करना भी बहुत अहम है। तो इसके प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ मिसालें यहाँ लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक इस्म लेते हैं, वाहिद मुज़क्कर इस्म, कुर्सी। अब देखिए इसके आखिर में गोलता नहीं है, मोनस की कोई अलामत नहीं है, हकीकी मोनस भी नहीं है। तो ये क्या है? ये वाहिद मुज़क्कर इस्म है। इसके हालत रफ़ा में क्या हाल होगा इसका? हमने पढ़ लिया, बुन बन बिन, या दो पेश दो जबर दो जेर रफा नसब जर के लिए होता है, वाहिद इस्म के लिए, वाहिद मुजक्कर इस्म के लिए। तो हम लिख लेंगे कुर्सियुन हालत रफा में, हालत नसब में क्या होगा? कुर
اب یہ اس کے اوپر ہم لوگ یا کے اوپر زبر لائیں، دو زبر دیں گے تو اس کی شکل تھوڑی بدل جائے گی. تو اسے ہم کیسے لکھیں گے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اسے کیسے لکھیں گے. کر، یہ یا ہے سی، اب دو زبر یہاں لگایا اور یہ الف ایڈ کر دیا، کرسین. اور حالت جر کرسین، کرسیون کرسین کرسین ہو گیا. اب اور ایک واحد مذکر اسم ہم لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں شیء. شیء یعنی کوئی چیز. تو واحد مذکر ہے، اس میں کوئی بھی علامت نہیں ہے مؤنث کی. تو حالت رفع میں اسے ہم کیسے لکھیں گے؟ حالت رفع میں ہم اسے لکھیں گے شیء. حالت نصب میں شیئن. اب ہمیں اس کی حالت کو بدلنا ہوگا. تو شیء جب حالت نصب میں جائے گا تو کچھ ایسا ہو جائے گا. یہ یا ہے، یہ یا ہے شیئن، کیونکہ اس کے بعد ایک حمزہ تھا، اس کے اوپر ہم نے دو زبر دیا تو اس طرح لکھایا جائے گا. اور حالت جر میں شیئن، شیئن شیئن شیئن. اچھا، ایک جمع سالم مؤنث اسم لیتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خاصیت اس کی یہ ہے کہ حالت نصب میں وہ دو زبر قبول نہیں کرتی. جمع سالم مؤنث، یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جمع سالم مؤنث اس کی خاصیت یہ ہے کہ حالت، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں حالت نصب میں دو زبر قبول نہیں کر رہی، دو زیر ہے. تو آگے پڑھتے ہیں، کسی اور اسم کو لے کر دیکھ لیتے ہیں، ہم جانچ لیتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے. مثلا ہم ایک اسم لیتے ہیں طالبات. اب یہ حالت رفع میں طالباتن، حالت نصب میں طالباتن ہو جائے گا. یہاں پہ دو زبر نہیں آئے گا. اور جر میں بھی ایک ہی حالت ہوگی، نصب جر ایک ہی ہے، اس لیے طالباتن. تو طالباتن طالباتن طالباتن، یہاں پہ دو زبر حالت نصب میں دو زبر نہیں آ رہا. یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے جمع سالم مؤنث کے لیے. تو یہ تھا ہمارا موضوع اعراب کے متعلق، اور اس چارٹ کو ہمیں یاد کرنا ہوگا. اس چارٹ کو بغیر یاد کیے عربی زبان میں آگے بڑھنا بہت ہی مشکل ہے. تو اس چارٹ کو یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور یہ اعراب کا چارٹ ہے، جمع سالم، جمع مذکر، جمع مکسر، مثنیٰ اور واحد کے لیے. تو پہلے ہم واحد کو دیکھ رہے ہیں، پھر ایک بار پھر ریویژن کر لیتے ہیں کہ کیا پڑھا ہم نے. واحد مذکر اسم کتاب ہے، اور اس کی حالت رفع دو پیش سے آئے گی کتابن، حالت نصب دو زبر سے کتابن، حالت جر دو زیر سے کتابن. واحد مؤنث اسم میں بھی وہی، دو زبر دو پیش، دو زبر دو زیر. تو مروحہ ہم نے ایک مثال کے طور پر اسم لیا، واحد ہے مؤنث ہے. مروحتن مروحتن مروحتن. مثنیٰ بنانے کا ہم نے طریقہ دیکھ لیا تھا، مذکر کے لیے رجلانی، حالت رفع میں وہی رجلانی رہے گا. حالت نصب میں ہم کیا کریں گے؟ الف اور نون ہٹا کر یا اور نون لگا دیں گے، یا کے اوپر ساکن ہو جائے گا تو رجلانی ہو جائے گا رجلینی. جر میں نصب اور جر ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے رجلینی. پھر سے اس کے بعد مثنیٰ مؤنث کے لیے بھی وہی قانون ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو بنتانی بنتینی بنتینی.
उसके बाद जमा सालिम के मुजक्कर में हमने देख लिया मुस्लिमूना, वो और नून हटाकर या और नून लगाना है, नून के ऊपर जबर कर देना है, तो मुस्लिमूना हो जाएगा मुस्लिमीना, और हालत जर में भी मुस्लिमीना ही रहेगा। उसके बाद जमा सालिम मुअन्नस जो एक ख़ास है तरकीब, क्योंकि उसमें नसब में दो ज़बर नहीं आती, तो हम देख लेते हैं। सालिहात एक इस्म है जो जमा है और सालिम है और मुअन्नस है। जमा सालिम क्यों है? क्योंकि सालिहा की जमा है, और सालिहा को जमा बनाते वक्त, सालिहात बनाते वक्त उसके हरूफ की तरतीब में कोई बिगाड़ पैदा नहीं हो रहा, इसलिए जमा सालिम है सालिहात। तो सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन, सालिहातुन रफा में, सालिहातिन नसब में, सालिहातिन जर में। इसके बाद जमा मुकस्सर और वाहिद एक ही तरीके से बनता है, यानी उन अन इन की आवाज़ आती है, यानी रफा में दो पेश, नसब में दो ज़बर और जर में दो ज़ेर। तो अक़लाम अगर मुज़क्कर है, जमा मुकस्सर है कलम की, तो वो रफा में हो जाएगा अक़लामुन, नसब में अक़लामन, जर में अक़लामिन। और जमा मुकस्सर मुअन्नस को लिए तो नसा, निसा को लेते हैं। निसा हालत रफ़ा में निसाउन, हालत नसब में निसाअन, हालत जर में निसाइन। ये है एराब का मौजू, जो बहुत ही अहम मौजू है और जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह जो भी इस चार्ट को याद करेगा उसके लिए अरबी ज़ुबान की कुंजी एक तरीके से साबित होगी, क्योंकि एराब जानना बहुत अहम है अरबी ज़ुबान के ग्रामर को समझने के लिए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।